چھوڑ کر تم جاؤ گے جو تم جاؤ گے جو تم جاؤ گے تو مجھے چھوڑ. اعلیٰ حضرت اسپیکنگ. کیا رے پپو خان؟ کیا حال ہے بھائی طوفان بھائی، وقار بھائی، کیا حال ہے؟ ہمارے حال سے تو سیدھے ہی رہتے ہیں. سیدھے سب سے سیدھے کب سے ہو گئے بریلوی لوگ؟ ہم تو سیدھے سادے بھولے والے لوگ ہیں. سیدھے سادے بھولے والے بدعتی ہوئے، اچھے بدعتی. دل سے ہنسنا پر عمل کرنے والے، دنیا میں ہنسنا آخرت میں رونا، اچھی بدعت کرنے والا اچھا بدعتی. ہم یہاں پہ بھی ہنسیں گے اور وہاں پر بھی ہنسیں گے. نہیں یہاں پہ تو ہنسو گے، آخرت میں رو گے. سنو سناؤ. تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارے جو عقائد ہیں، کفریہ عقائد ہیں، ایک ہمارا عقائد کو میرے بھائی کفریہ ثابت کر دو، میں تمہارے ہاتھوں پہ بیٹھا کے لینے کے لیے تیار ہوں. ایک عقائد نہیں سینکڑوں عقیدے تمہارا کفری ہے، لیکن میں ایک بتاؤ نا. باقی میرے بھائی جو سینکڑوں ہے 99 بچیں گے، اس سے بعد میں آئیں گے. ایک تو بتاؤ. ہاں میں بتاؤں. مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے عرش پر کرسی لگا کر بیٹھا ہے، یہ عقیدہ تم نے کہاں سے جڑا؟ عرش پر کرسی کو لگا کے بیٹھا ہے، یہ عقیدہ جو وہابیوں کا ہے تمہارے گھر کا. یہ بھائی میں نے آج تک عقیدہ سنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھا ہے. ہمارے لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے. یہ تو قرآن میں آیا ہوا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں کہ جو رحمان ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. اور آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس نے تمام آسمان و زمینوں کو گھیر رکھا ہے. لیکن آپ نے جو ان دونوں کو ملا کے معاذ اللہ کفریہ عقیدہ بتا دیا کہ کرسی لگا کے بیٹھا ہے، معاذ اللہ وہ بیٹھا ہے لیٹا ہے کھڑا ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے. تو یہ آپ نے معاذ اللہ اپنے منہ سے کہاں سے بک دیا؟ نہیں سنو میں اکثر کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ہمارے اہل حدیث جماعت سے جب میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے عرش پر ہے. ہم سے پوچھو اللہ کا ہے. بتاؤ نا، وہی میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا. نہیں ہم سے پوچھو کہ پپو خان اللہ کہاں ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح عقیدہ. بتاؤ پپو خان کہاں اللہ ہے، بتاؤ. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اونچائی پہ، بلندی پہ، ٹاپ پہ، اپنے عرش کے اوپر اپنی شان کے لائق ہے. اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی پاور، وہ ہر جگہ سب کے ساتھ، وہ ہر طرف ہے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ جو یہ میں نے عقیدہ بتایا ہے بھائی، جو میں نے عقیدہ بتایا ہے اس کو کیا آپ کہیں گے؟ کفریہ کہیں گے؟ بالکل کفریہ عقیدہ ہے. معاذ اللہ. یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کافر ہو گئے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ نے کبھی اس چیز کو امام ابو حنیفہ نے خود کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا کہاں ہے تو اس نے کفر کیا. اور جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پہ ہے یا آسمان پہ ہے تو وہ بھی میرے بھائی کافر ہے. بیوقوف آدمی جیسی بات کرتے ہو یار. میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں، وہ سوال کی کیفیت کو سمجھو. میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے جو عقیدہ بیان کیا اس کے جملوں کو سمجھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ ہے، بلندی پہ ہے، تو کیا بلندی پہ نہیں مانتے تم؟ سنو میرا سوال یہ ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے تو جب میں نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے بھائی قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں. خود پڑھو نا. دے رہے ہو تم لوگوں کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو ہے عرش پر استوا فرمایا. اس میں کہا لکھا کہ اللہ عرش پر ہے. استوا کا معنی میرے کو مطلب نہیں پتا ہے نا. فرمائی معلوم ہے استوا کا مطلب ہوتا ہے تجلی فرمانا. کیا ہوتا ہے تجلی؟ تو استوا کا مطلب ہوتا ہے تجلی فرمانا. یہ جو آیت ہے میرے بھائی آپ اس کو معاذ اللہ حقیقی معنی میں لے رہے ہیں. سنو تجلی تو اللہ نے کوئی تو باہر پر بھی فرمائی تھی، تو کیا اللہ کوئی بڑے بڑے سلف نے یہ کہا ہے کہ اپنی شان کے لائق. نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر اپنی شان کے لائق ہے. سنو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ عرش پر ہے. اس نے یہ پہلے آپ نے کہا ہے تمام میرے بھائی 1440 سال کے جو سلف ہیں اہل سنت کے انہوں نے کہا آپ کے نزدیک کوئی سلف نے نہیں کہا ہے، صرف ابن صحیح مسلم کی حدیث سے کتاب التوحید کی اللہ کے رسول یہی سوال جو آپ نے ہم سے پوچھا ہے نا. ارے بھائی سن تو لو طوفان بھائی، وقار بھائی، ایک منٹ سن لو پھر آرام سے بول لینا. جو آپ نے ہم سے سوال پوچھا ہے نا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، یہی سوال اللہ کے نبی نے ایک باندی سے پوچھا تھا. تو جو وہ لونڈی تھی، باندی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا اللہ فی السما، یعنی کہ
अल्लाह आसमान में है, तो अर्श कहाँ है? आसमान में है। अरे बेवकूफ, उसने जो है अपने समझ के मुताबिक कहा आसमान और अर्श दोनों मतलब माज़अल्लाह अल्लाह के नबी के सामने उसने गलत जवाब दे दिया और अल्लाह के नबी ने उसकी इत्तला भी नहीं की। सुनो, जो उस बांदी का जवाब इतना सही था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो औरत है मोमिन औरत है, इसको आजाद कर दो। इतना परफेक्ट उसने जवाब दिया था कि अल्लाह आसमानों में। नहीं, फिर तुम फंस गए तुम फंस गए भाई। तुमने अल्लाह के नबी की जो मेरे भाई जो तालीमात है उस पर उंगली उठा दी, यानी कि तुम्हारे कहने के मुताबिक जो बादली थी उसको आता जाता कुछ नहीं था और उसने गलत जवाब दे दिया और अल्लाह के नबी ने उसके गलत जवाब पे उसको आजाद कर दिया। अरे बेवकूफ आदमी, सुन, इंसान की जो समझ होती है ना। अरे चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं तूफान भाई, वकार भाई, आपका अल्लाह कहाँ है? तो सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, आपका अल्लाह कहाँ है? पहले आप अकीदा जान के देखें, आप कौन से तौहीद वाले अकीदे पे हैं। उस खातून ने अगर ये कहा कि अल्लाह आसमानों पर है तो तुम्हारे से तो इख्तलाफ हो गया उसका, क्योंकि आसमान और अर्श दोनों अलग अलग से है। अरे तो अल्लाह ताला ने तो बताया है ना कि सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अर्श के ऊपर अल्लाह इंसान के लायक है। आसमान नहीं है ना। अरे भाई मैं तुमसे कहूँ कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो इसका माना ये नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। जाहिल आदमी कुछ अकल नाम की चीज है कि नहीं? अर्श अलग चीज है, आसमान अलग चीज है। नहीं, जैसे मेरे भाई इंडिया के अंदर ही मेरे भाई उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेरे भाई इलाहाबाद आता है, उसी तरीके से सातों आसमान के ऊपर अर्श आता है। नहीं, अर्श जो है आसमान के अंदर नहीं। जमाने माशरे के माहौल के हिसाब से उस दौर में जो सबसे ऊंचाई थी, बुलंदी थी, उसको कहा जाता था फिस्तमा, यानी कि आसमान पर है। आसमान का माना क्या? सातों आसमान के ऊपर है। सुनो, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अर्श क्या है, आसमान क्या है, सबकी तारीफ बयान कर दी। चलिए अल्लाह के नबी की बीवी की मेरे भाई आपको बता देते हैं उनका अकीदा क्या था। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने कहा। कौन सी बीवी? चलिए उनका नाम बताइए। नाम बताइए। जिसका निकाह अल्लाह ताला ने सातों आसमानों के ऊपर से कराया था। अरे नाम बताइए ना आप। सफिया रजी अल्लाह ताला। क्या? सफिया रजी अल्लाह ताला। हाँ, क्या कहा उन्होंने? तो वो खुद कहती है कि मेरा जो निकाह है वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने सातों आसमानों के ऊपर से कराया, यानी कि अल्लाह के हुक्म से निकाह हुआ था। तो वो खुद बयान कर नबी का निकाह अर्श पर हुआ। ठीक है, और बोलिए। चलिए अबू बकर का अकीदा बताते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके थे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आपा खो दिया था और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल माज़अल्लाह मर गए तो हम उसकी जो गर्दन है काट देंगे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते उनको समझाते हैं कि ए उमर बैठ जा। वो अपने आपे से बाहर होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुतबे के लिए खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग गौर से जान लें कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह जिंदा है और अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर है। अब वो लोग गौर से जान लें कि जो लोग मोहम्मद की इबादत करते हैं। खुतबा भेज दीजिए, इसमें ये लिखा है कि अल्लाह सातों आसमान के ऊपर। हाँ बिल्कुल, बुखारी का है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बात हो जाए। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो लिख लो, किसी के अकीदे को कुफरिया कहने से पहले अपना अकीदा जान लो। मैं साबित करूंगा, क्योंकि यही अकीदा इब्न तैमिया का था, इसकी वजह से यही अकीदा इमाम अबू हनीफा का था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श के ऊपर है, उसका इल्म उसकी कुदरत वो चारों तरफ है। सुनो, इब्न तैमिया पर कुफ्र का फतवा अल्लामा जलालुद्दीन सूयती शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद रज़ा खान के ऊपर भी कुफ्र का फतवा है, दिखाएं। अरे यार, उन्होंने 70 कुफ्र का फतवा लगाया, तुम उन पर क्या लगा पाओगे? वो खुद मेरे भाई काफिर हो गया ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दूसरों को काफिर कहता है, अगर वो काफिर ना हुआ तो कुफ्र उसके ऊपर लौट आता है। नहीं, और तुम्हारे आला हज़रत ने दुनिया भर के लोगों को तो काफिर बोल दिया, तभी तो कुफ्र उसके ऊपर लौट क्या गया। उसमें जो है हाँ मेरे भाई, वो देवबंदियों पे मेरे भाई कुफ्र का फतवा लगाया है। अहले हदीसों पे बरेलवी आलिम का खुद का कहना है, बरेलवी आलिम का खुद का कहना है कि अहले हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी गुस्ताखी साबित नहीं है, वो देवबंदियों से साबित है।
अरे यार सर चलने लगे यार तुम एक चीज बताओ, तुम्हारे जो सुनो आलिम है, इमाम है, वो ज्यादा जानते हैं या तुमको ज्यादा पता चल गया? नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, उस किताब में 3 गिरोहों पर कुफर का फतवा है। पहला देवबंदी, दूसरा वहाबी और तीसरा जो है कादियानी। ये तीनों पर कुफर का फतवा उसमें दिया है। और ये लिखा है कि जो इनके तीनों में नहीं है, नाम देवबंदी है, नाम वहाबी है, नाम कादियानी है। अरे तुम वहाबी हो, सुनो, हम तो मुत्तबे सुन्नत, अहले सुन्नत, असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले अस्र, अहले तौहीद। सुनो, 3 बार तुम लोगों ने नाम बदली किया। पहले जो तुमने अपना को अरे हम लोग कोई ईद मिलादुन नबी थोड़ी ना है कि पहले इसका नाम रखेंगे 12 रबी अव्वल, बाद में कर देंगे 12 फात, फिर कर देंगे 12 वफात, फिर कर देंगे मिलादुन नबी, फिर कर देंगे ईद मिलादुन नबी, फिर कर देंगे जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हम लोग माशाअल्लाह कोई मिलाद थोड़ी ना जो हम लोग अपना नाम बदलेंगे। नहीं, तुम लोगों ने अपना हमारा नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के दौर से चलता आ रहा है, कई बार बदला। वो उसके सबूत भी मेरे पास है। पहले तुम अपने हदीस सबसे मौजूद है, जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, जब से हदीस मौजूद है तब से उसको मानने वाले मौजूद हैं। और जो हदीस को मानते हैं उनको उर्फ़ में अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस जो है ये मुहद्दिसीन का लक़ब था, लेकिन तुम लोगों ने चुरा कर अपने मुहद्दिसीन मेरे। अच्छा ये बताइए, अहले जन्नत का माना क्या होता है? अहले जन्नत में रहने वाले। हाँ, तो अब हम कह दें नहीं जन्नत के माहिर, तो ये गलत चीज हो जाएगी ना। इसी तरीके से अहले हदीस का माना होता है हदीस को अमल करने वाले। अब उसमें मुहद्दिसीन भी शामिल है, आम लोग भी शामिल हैं। नहीं, लेकिन तुम ये देखेंगे खाली हदीस के माहिर उसमें शामिल है। सुनो, तुम अपनी जमात के लिए जबरदस्ती फिट कर रहे होती। अरे अल्लाह के बंदे, इतना खतरनाक जवाब दे दिया आपके अक्ल में मेरे भाई। जो आपकी बत्ती जल गई है, नहीं जली है, आपकी दिमाग की बत्ती जल गई है। आप मेरे भाई समझ गए मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मानेंगे नहीं। सुनो, कई बार अपना नाम बदली कर रहे हो। पहले तुम लोगों ने मोहम्मदी नाम रखा। मोहम्मदी तो आज भी कहते हैं भाई, ये हमारे सिफाती नाम है भाई। हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, अहले तौहीद हैं, अहले हक हैं। अगर तुम सच्चे मोहम्मदी हैं, सलफी हैं, लेकिन वहाबी नहीं है। सच्चे होते, सुनो, वो तो तुम कहोगे नहीं, क्योंकि वहाबी नहीं वहाबी ना, क्योंकि वहाबी दुनिया में कोई है ही नहीं। वहाबी तो एक आपकी तरफ से फर्जी झूठा इल्जाम लगा दिया गया। अरे यार, झूठा इल्जाम नहीं लगा के गया है। वहाबी नाम भी हम लोगों ने। आज मेरे पास जो सरकार चल रही है, वो सरकार का काम ये है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो है आतंकवादी, वो है देशद्रोही, एंटी नेशनल। उसी तरीके से बरेलवियों ने एक मेरे भाई इजाद कर दिया था कि जो हमारे अकीदे से अलग हो जाएगा वो है वहाबी, वो है 24 नंबर, वो है मतलब खबीस। तो ये तो मेरे भाई बरेलवियों को हमने नहीं दिया। नहीं, ये नाम हम लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, तो वहाबी नाम कहाँ से आ गया? अल वहाब तो अल्लाह की मेरे भाई सिफात है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में कि बेशक अल्लाह अल वहाब है। तो अल वहाब तो अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह का सिफाती नाम है, हम लोग जानते हैं। तो तो तू नाम को बिगाड़। तो सुनो यार, वहाबी नाम हम लोगों ने नहीं दिया है। पहले इसका पस मंजर समझो। असल में वहाबी नाम ये आया कहाँ से? पहले ये देखो, आप लोग कहते हो कि वो इब्ने वहाब नजदी के मानने वाले वहाबी है। सुनो, मोहम्मद और उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो अगर उनके नाम से जोड़ना था तो मोहम्मद ही कहना चाहिए था, लेकिन आप लोग को मोहम्मदी बोलने में जबान पे छाले आ रहे थे तो आपने वहाबी कह दिया। सुनो, वहाबी नाम हमने नहीं दिया। मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ, ठीक है। सुनो, पहले गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो अब्दुल वहाब नजदी साहब थे, जो एक आलिम थे, रियाद के बड़े आलिम माने जाते थे, ठीक है। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था मोहम्मद, एक का नाम था सुलेमान, ठीक है। तो मोहम्मद साहब जो थे, जो जिनको शेख नजद भी कहा गया, ठीक है, नजद के शेख, जिन्होंने किताबुत तौहीद लिखी और अपने कुफरी अकीदे के जरिए जो है दुनिया में जो है अनाप शनाप अकीदे लोगों के गढ़े, ठीक है। तो जब ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी साहब जो थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, ये खिलाफत उस्मानिया से जो है बुग़्ज़ रखते थे, नफरत रखते थे। ये हरमैन शरीफ जिसको हिजाज कहा जाता है, उस पर जो है तुर्की के खिलाफत हुसैन के जो सूफी लोग थे, जो कबर पुजारी थे, उनसे नफरत करते थे। हाँ, सुनो, नफरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं करते थे। नहीं, खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया था, ठीक है। वो खिलाफत का नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें काम अल्लाह और अल्लाह के नबी से हटके होगा तो नफरत तो होगी ना। सुनो, तो इसलिए इनके जो गिरोह थे, वहाबी ग्रुप था इनका जो एक पूरा, इनसे और वहाँ के हुकूमत जो थी तुर्कियों की,
जो हरमैन शरीफन पर थी, इनमें जंग हुई, 3 बार जंग हुई है। पहली बार जंग हुई जिसमें जो है वहाबी ग्रुप को हारना पड़ा, दूसरी बार कोई जंग हुई उसमें भी वहाबी कोई ग्रुप था कि वहाबी नाम सबसे पहले मेरे भाई अहमद रजा खान के आने के बाद वजूद में आया? नहीं, ये नाम जो है तुर्कियों ने दिया है, वहाबी हमने नहीं दिया है। उसकी दलील भी हम दे सकते हैं। तो यानी कि आज तुमने साबित कर दिया, जो मेरे भाई नाम जो तुम लोग ने दिया नहीं, तुर्कियों ने दिया है, तुम उनके अंधे मुकल्लिद बन गए। नहीं, अंधे मुकल्लिद नहीं, क्योंकि वो तुर्की भी हमारे ही अकीदे के मानने वाले थे। मतलब तुर्की जो मेरे भाई गुमराह जो मेरे भाई फिरका था वो तुम्हारे मानने वाले थे। हाँ, लेकिन हम में और उनमें सिर्फ एक चीज का फर्क था, और आज भी है। वो तुर्की थे, तुम लोग मेरे भाई हिंदुस्तानी हो बस। नहीं, ये फर्क नहीं था। बात ये फर्क की नहीं है। फर्क ये था कि जब आला हजरत दूसरे बार हज करने गए हरमैन शरीफन में 1911 में, तो आला हजरत ने वहाँ के जो शरीफ मक्का थे, जो काजी भी कहा जाता है तुर्की हुकूमत की तरफ से, तो उनसे कोई तजवीज दी थी कि वहाबियों का कत्ल किया जाए। ठीक है, वहाबियों को जो है हरमैन शरीफन में दाखिला बंद कर दिया जाए और उनका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन शरीफ मक्का साहब जो थे वो ये नजरिए रखते थे कि हरमैन शरीफन में जो है खून नहीं बहना चाहिए, और इसी वजह से ये लोगों की हुकूमत गई। जब 1925 में वहाबी फौज दाखिल हुई मक्का और मदीना में, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। इतनी गलत सलत जो मेरे भाई इतिहास है, हिस्ट्री है, तारीख है, ये कौन सी किताब में मेरे भाई छापी गई है? सुनोगे हम में और उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि वो लोगों ने, मतलब तुम लोग तो इतिहास बदल दो यार वाकई में। सुनो उन लोगों में और हम लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो सूफी लोग थे वो अदब और एहतराम के चक्कर में जो है वहाबियों का कत्ल नहीं किया उन लोगों ने, और हम लोग का ये अकीदा है कि वहाबी अगर खाने काबा में भी घुसा है तो उसका कत्ल वाजिब है। ठीक है, हाँ, तुम लोग के बाप का राज चल रहा है ना, किसी का भी मेरे भाई जाके कत्ल कर दोगे? हाँ बिल्कुल, वहाबी वाजिबुल कत्ल है। और कत्ल करने के लिए आ जाए ना, हमें उतार के वो जूते बरेलवियों के मारेंगे, कत्ल तो क्या बिल्कुल मक्खी मारना भूल जाएंगे। वहाबियों का जो है कुल मिला के समझ गए कि जो ये मेरे भाई बरेलवी होते हैं, ये मेरे भाई दिल में बुग़्ज़ होता है, ये कभी भी किसी का भी खून कर सकते हैं। सुनो, वहाबियों की दौलत, वहाबियों की मस्जिद, वहाबियों के मदरसे, ये सब अहले सुन्नत के लिए हलाल है। नहीं, सब अल्लाह का है भाई, हमारे यहाँ पे हम लोग कब्जा थोड़ी ना करते हैं। सुनो, वहाबी अहले हदीस और वहाबी देवबंदियों की औरतें भी ये अहले सुन्नत के लिए हलाल है। अगर मौका मिले तो वहाबियों की औरतें उठाना भी जायज है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बलात्कारियों, इनको गुलाम पढ़ के इतनी हवस जाग गई है कि किसी की औरत को अपने ऊपर माज़अल्लाह मेरे भैया तुम इन लोगों को गुलाम बनाना, ये है बरेलवियों का अंदरूनी अकीदा, जो किसी की बीवी को अपने ऊपर माज़अल्लाह हलाल कर लेते हैं और कहते हैं वहाबी की औरतों को उठा लो, जो करना है करो। तौबा तौबा कर सकते हैं।